Okay, so let's discuss the chapter cell. जो लविश को नहीं आई थी, इसलिए लविश ही नहीं आज आया है. चलिए. Okay, what do you mean by cell? Anand? What is cell? हाँ जी, आनंद. क्या चाहिए? Cell is the basic. So cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. Okay. Sit down. So that means all living organisms, they are made of cells. Okay. So सबसे छोटी से छोटी चीज जो आपकी बॉडी को बनाती है, that is the cell. Okay. So these cells actually differ in number from the organism to organism. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक में सेम सेल्स होंगे. हर एक में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, उनके साइजेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. Okay, depending on this type, we are having two types of organisms, depending on the number of the cells. ठीक है, कि इसमें कितने number of cells है. We are having the two types of organisms. The first one are number of cells. So the first one, they are unicellular, and the second one, they are where the word uni means one. So they are having one cell. Okay, and multi में they are having more than one. हाँ जी रुद्रांश, नेक्स्ट पॉइंट बताओ बेटा. Tell the next point of difference. सारे रुद्रांश हैं. हाँ जी रुद्रांश, रुद्रांश तेरा ही नाम है. फिर बोलो. नव्या. क्या? ओके, सो डेथ ऑफ वन, पहले मार दिया उस सेल को बेचारे को. डेथ ऑफ वन सेल, डेथ ऑफ वन सेल लीड्स टू डेथ ऑफ होल ऑर्गेनिज्म. हाँ जी, नेक्स्ट. इधर ओके. तो अगर एक सेल यहाँ पर डाई कर भी जाता है तो दैट डजंट मीन कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डाई कर जाएगा. डोंट लीड टू डेथ ऑफ होल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट. सो यहाँ पर क्योंकि एक सेल है तो दैट सेल इट कैरीज आउट all function. One cell carries out all function, all body function. And ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सेल्स हैं तो सारे जो हैं वो अपने अपने काम करते हैं. So different cells perform different functions.
हाँ जी, नेक्स्ट। इसमें नहीं, आप अभी आप बताओगे प्रोकैरियोट। वेरी गुड, दे आर नॉट वेरी गुड, नो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक सेल ही है, एक सेल सारा काम करेगा, बट हियर देयर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Different cells, they are getting converted into tissues, organ system, and they all are performing the functions. Any other point? Example is amoeba and for the multicellular animals. Tanmay, example for multicellular. मास क्यों नीचे है आपका? कितनी बारी बोलूं बेटा आपको? ये क्या था? नेक्स्ट इज, सो दिस इज अबाउट देयर नंबर. अगर एक नंबर है या एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं, देन दे आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. But you know, for the multicellular organism, they are having millions of cells in their body. Okay, so where 1 billion is billion, and 1 trillion is ठीक है जी. MBT याद करवाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है. जहां पर मिलियन है तो बिलियंस में हम करेंगे. 1 बिलियन विल बी इक्वल टू 1000 मिलियन. ओके, एंड वेयर 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन. ठीक है जी. नेक्स्ट राइट डाउन level of organization. Next is level of organization. वो करवाई नहीं है मैंने. ओके, सो डिस्कवरी ऑफ सेल. हु डिस्कवर्ड द सेल? in Robert Hooke. He discovered the cells in 1665. And how he discovered the cells? Just raise your hands. Just raise your hands. Arish bolo. Cork is the bark of the tree, right? So he cut a very thin slice of the cork. Next, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर रखा उसने. देन व्हाट ही ऑब्जर्व? बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स उसने ऑब्जर्व किए हैं, which he later on said that these boxes and compartments, they are cells. So they were the dead cells of the plants. ठीक है. The bark of the tree, these were actually the dead cells of the bark of the tree. Right? So Robert Hooke, he coined the term cells for these boxes or these compartments. And now what is the theory of the cell? Firstly, किसने दी थी ये theory? कौन? So that is Matthew Jacob Schraden and Theodor Schwann. Okay. So what is the cell theory? तो ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? जस्ट अ मिनट.
All living organisms are made of cells. Yes, next point. ठीक है, next is the definition of cell. That is, cell is the basic structural and functional unit. Next. वेरी गुड. जो नए सेल्स है वो पुराने सेल से ओरिजिनेट होंगे. ठीक है. सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है? And that single cell is known as fertilized cell और zygote. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? zygote या fertilized cell. Okay, this is all about the cell theory. उसके बाद हम कैसे जो हैं, how we can see the cells? What are the instruments that we can use in order to analyze the cells? Microscope. ठीक है, we can use microscope. But cells जो हैं वो कैसे होते हैं? They are very small, तो हम microscope use करेंगे. But they are colorless also. Colorless होने के कारण we can't see them. So we will be using some of the staining. ठीक है, तो stains में हम क्या क्या use कर सकते हैं? हाँ जी नवे, stand up. और सैफ्रन है. से नहीं है. हाँ जी ठीक है बेटा. So these are some of the staining solutions that we can actually put on the glass slides, okay, in order to visualize the cells. क्योंकि cells होते हैं, they are colorless in nature. Okay, they are very very small and they are colorless. Okay, so without staining they will not be easily seen. A hen sac can be seen easily. देख सकते हैं. तो क्या वो single cell है या? Single cell. That is a single cell. ठीक है, so this is the example. That is actually a single cell, but that can be seen with the naked eye. आप ऐसे उसको देख सकते हो. Okay. Now coming to the next is level of organization कि जो cells हैं वो कैसे organized हैं आपके. अच्छा, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है अनियन सेल की और चीक सेल्स की. ठीक है. अनियन सेल्स कौन से हैं? They are the plant cells. They are the plant cells. ठीक है, तो plant cells में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? Yes Arish, cell wall is present. नहीं होती है. Animal cell में होती है वो. So they are having chloroplast also, plastids, nucleus. ठीक है, endoplasmic reticulum. Okay, sit down. So coming to the next is level of organization कि जो cells हैं वो अपने आप को कैसे organize करते हैं. आगे पीछे हो जाएगा कवर. तो level of organization ही बेटा, ये level of organization ही है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू से. देन चलिए शब्द स्टैंड अप.
Name tissues that are actually formed from the cells. कौन से टिश्यूज जो हैं या कौन से सेल्स में हम वो आगे टिश्यूज बनाएंगे या सकुल फॉर एग्जांपल इसके सेल्स कौन से हो जाएंगे आरबीसी ठीक है रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे विल कंबाइन टू गिव यू द कार्डियक मसल टिश्यूज कार्डियक मसल्स ऑर्गन कौन सा हो गया है हार्ट ऑर्गन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट एंड अदर पार्ट्स दे फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो जाएगा वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है ठीक है ऑर्गेनिज्म जब आपने सारे सिस्टम जो है वो कंबाइन कर दिए जिन जिनके मैंने नाम बोलने हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो जब ये सारे सिस्टम्स कंबाइन कर जाते हैं देन दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म ओके दैट्स क्लियर सिट डाउन So RBCs they will combine to give cardiac muscle cells, then they will form heart, that is actually the organ system बनेगा circulatory system सारा, okay, arteries and veins का जो भी network होगा that will be forming in the organ system, and organism जब हम सारे systems excretory system, respiratory system, digestive system ये सारे जब combine कर देते हैं, then a full fledged organism is there, ठीक है, that contain all the body parts, right? Now next is the shape of the cells. अब हमने नंबर डिस्कस कर लिए हैं मिलियन एंड ट्रिलियंस में नंबर होते हैं इनके बट नाउ लेट्स डू द शेप्स कि इनकी कैसी शेप्स होती हैं फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया नंबर है या शेप्स हैं या साइज हैं दे विल बी डिफरेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ओके कौन कौन सी शेप होती है सफेरिकल मीन्स स्फीयर जैसी किसकी होती है आरबीसी की हो जाती है एंड एग्स ऑफ एनिमल्स की भी आरबीसी शेप हो जाती है उसके बाद स्पाइंडल शेप किसकी होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की उसके बाद इलोंगेटेड होता है प्लस ब्रांच्ड है and thread like that is the irregular किसकी शेप होती है हाँ जी मदर स्टैंड अप what is the full form of WBC and RBCs अमीबा की कैसी शेप होती है कोई शेप नहीं होती क्यों नहीं होती है बेटा why amoeba is not having any shape हाँ जी why amoeba is not having any shape so this is the shape for the मसल सेल्स स्फेरिकल का मतलब क्या है स्फीयर है ठीक है नर्व सेल्स हम डायग्राम पूरा पढ़ चुके हैं नर्व सेल का तो आरबीसी डब्ल्यू अमीबा की शेप भी आपको पता है इट इज हैविंग एनी इररेगुलर शेप कोई भी इररेगुलर शेप हो सकती है अमीबा की ओके दैट इज द स्मूथ मसल फाइबर्स की शेप सिट डाउन स्यूडोपोडिया की वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कोई कहीं किसी भी डायरेक्शन में
कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में वो जो है वो क्या कर सकता है, स्यूडोपोडिया जो है वो फॉर्म कर सकता है. ओके, फॉल्स पी. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द सेल्स. ठीक है, इट अगेन वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. ठीक है, बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा. सबसे छोटा साइज क्या होता है? आप इसको माइक्रोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हो या माइक्रोन्स में एक्सप्रेस करते हो. ठीक है, वेयर 1 माइक्रोन और 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर्स होते हैं? -3. ठीक है, वेयर 1 माइक्रोन इज 10⁻³ मीटर. तो सेल का साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है. वी एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर. सबसे छोटा सेल कौन सा है? द स्मॉलेस्ट सेल इज and the largest cell is that is the ostrich egg. बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल कौन सा है? and the largest one okay ji. and size of the cell has no relation with the body of the organism. जरूरी नहीं है कि जिसकी बॉडी बड़ी है उसमें सेल भी बड़े बड़े होंगे. ठीक है, सेल जो है वो नॉर्मल साइज के होते हैं. हर एक बॉडी में जो है वो सेम सेल्स होंगे, चाहे वो बॉडी बड़ी है या छोटी है. ठीक है, सेल की शेप, साइज, दे विल रिमेन द सेम. ओके, so next write down the components of the cell. Next write down the components of the cell. क्या क्या components होते हैं बेटा सेल के? हाँ जी रुद्रांश, what are the different components of the cell? किस किस का बना होता है? जी, पहले तो मास्क पहनो. बोलिए. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. बस? नहीं, और भी हैं? बताओ फिर कौन कौन से हैं और बता दो. कुछ काम है हमें और? पानी पी लिया, वॉशरूम चले गए, क्लास में पढ़ाई हो रही है उसका नहीं पता. सिट डाउन. So the components of the cell are cell wall, cell membrane, nucleus and cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance that is present inside the cell, and the cytoplasm, it contains all the cell organelles. Okay, nucleus, control house of the cell. सेल की सारी एक्टिविटीज जो है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. ठीक है, जो उनको रफ एंड हार्ड सरफेसेस से या सराउंडिंग से क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. प्लस दे प्रोवाइड शेप टू द सेल्स. ओके,
So let's have a difference between the cell wall and the cell membrane. How the cell wall and the cell membranes, they are different from each other. So here I will be writing about the cell wall and here I will be writing about the cell membrane. पहले cell wall बताओ. हाँ जी, last. Cell wall, it is present in only cell membrane that is present both in plant and sit down beta. Next, Adi, stand up. Next point. कौन सा देख देख के बोल रहे हो? PT1 में चैप्टर किया नहीं है हमने. आंसर दो. Non-living membrane and cell membrane is a that is a living membrane.